إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و صحیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج عید الاضحیٰ کی 13ویں تاریخ اور قربانی کا آخری دن ہے. ہم سب نے ابھی ایک عظیم الشان نسک اور ایک عظیم الشان عبادت کی شب و لمحات میں زندگی گزار رہے ہیں. آپ سب کو عید کی مبارک گھڑیاں مبارک ہوں، اور عید الاضحیٰ کی یہ مبارک ساعتیں اور یہ نعمتیں اور یہ رحمتیں اور اللہ رب العزت کی برکتیں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارک ہو. آپ سب کو مبارک ہو، ہم سب کو مبارک ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشی کے لمحات ہماری زندگی میں بار بار لائے، اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان رہتے اور بستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگی میں یہ خوشیوں کے ایام اور خوشیوں سے اور یہ رحمتوں اور برکتوں سے بھرے ہوئے لدے پھدے یہ ایام اللہ تعالیٰ بار بار نصیب فرمائے تمام مسلمانوں کو، اور اللہ عز و جل ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جن لوگوں نے یہ قربانیاں کی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور جنہوں نے نہیں کی ہیں اپنی عسرت اور اپنی تنگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں اب آئندہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آئندہ انہیں زیادہ سے اتنا عطا فرمائے کہ وہ اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کر سکیں. میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، عربی کا ایک شعر ہے کہ ومن طلب العلا بقدر القد تکتسب المعالی، بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر اللیالی. انسان کی کوششوں کے عوض، کوششوں کی مطابق بلندیاں، رفعتیں اور عروج حاصل ہوتا ہے. انسان کو اس کی محنتوں بقدر القد، محنتوں کے مقدار، محنتوں کی مناسبت سے انسان کو بلندیاں، رفعتیں اور عروج حاصل ہوتا ہے. ومن طلب العلا سحر اللیالی، اور جو بلندیوں کو چھونا چاہتے ہیں، جو رفعتوں کے آسمانوں پر قدم رکھنا چاہتے ہیں، وہ شب بیداری کرتے ہیں. شب بیداری کا مطلب یعنی جد و جہد اور محنت کرتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کرنے کی فکر میں رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام یوں ہی خلت کے مقام پہ نہ فائز ہوئے، یوں ہی خلیلیت کا مقام نہ عطا فرمایا گیا، اور اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سوانح کو اور آپ کی سیرت کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فخر عالم ہیں، جو عالم موجودات ہیں، فخر عالم موجودات ہیں، جو تمام کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ سید العرب والعجم سید ولد آدم ہیں، انہیں بھی اللہ کا تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، آپ بھی ملت ابراہیمی کو اختیار کریں اور ان کے نقش قدم پہ چلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی. قربانی کا ایک واقعہ ہے جسے ہم اور آپ ابھی
गुजर रहे हैं उन अय्याम से, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कुर्बानियां पेश की। एक वाकया, आप एक वाकये के ऊपर उस सुन्नत इब्राहिमी में अमल कर रहे हैं। ऐसे न जाने कितने सुनन हैं, ऐसे न जाने कितने इब्राहिमी नकूश हैं, ऐसे न जाने कितने इब्राहिमी शमा हैं जो रोशन हैं, जो हमें दावत देते हैं कि सिर्फ कुर्बानी ही नहीं बल्कि इस तरह के और भी बहुत सारे नकूश पा हैं सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, जिन्हें हम अपनी जिंदगी के अंदर हमें नाफिज करना चाहिए, जिन्हें हमें अपनी जिंदगी के अंदर पैदा करना चाहिए। क्या वो नकूश पा किसी तरह से कम है कि जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त शाम रात को बेदार होते हैं, सुबह की पो फटती है और अपनी बीवी हज़रत हाजरा से कहते हैं, उनको साथ में लेते हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे को साथ में लेते हैं और सफर का आगाज करते हैं। सफर का आगाज करते हैं मसर से और फिलिस्तीन से, और फिर वहां से सफर करते हुए ऊंट के ऊपर अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को, अपनी बीवी को लिए हुए मक्का के बेआबोग्याह मैदान में पहुंचते हैं। और वहां पर वाकया बतलाना मकसूद नहीं है बल्कि एक इशारा देना मकसूद है कि वहां नन्हे मुन्ने बच्चे को और उसकी वालिदा को, हज़रत हाजरा को, एक मशकीदा पानी और एक खजूर की टोकरी देकर और वहां मुंह फेर करके वापस होने लगते हैं। आप बताएं ये कितनी बड़ी कुर्बानी है जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की। कोई ये कह सकता है कि वो उनके ऊपर वो मुसीबत नहीं गुजरी बल्कि वो मुसीबत उनके आल औलाद के ऊपर गुजरी है। जिसके ऊपर जो मुसीबत गुजरती है वो उसको ज्यादा जानता है, आल औलाद उसको ज्यादा महसूस करते हैं। वो तो शौहर थे, वो तो मर्द थे, वो तो करके चले गए। लेकिन मेरे अजीजों, जरा एक शौहर से उसके बीवी बच्चों की कुर्बानियों के मामले में पूछें, वो जानता है, ज्यादा बेहतर समझता है। ऐसे भी लोग हैं अपनी जान को कुर्बान करके अपने आल औलाद की हिफाजत करते हैं, अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हैं। जरा उसकी गैरत को अगर देखना है, किसी मर्द की गैरत को देखना है, जरा उसकी आल औलाद के ऊपर आप हाथ उठा करके देखें, आप उसकी बीवी की तरफ हाथ बढ़ा करके देखें, फिर देखें कि उसकी गैरत किस तरह से बेदार होती है। आप हाथ बढ़ाएंगे, वो आपकी गर्दन काटने के लिए तैयार हो जाएगा। अर्ज करने का मतलब यह है कि सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस बेआबोग्याह मैदान में हजरत हाजरा को और इस्माइल को छोड़ा। ये एक नक्श, ये भी एक सुन्नत इब्राहिमी है। और क्यों छोड़ा? न बीवी को इसका पता, ना बच्चा था, मासूम था। हज़रत हाजरा ने भी वहां पर जब जाने लगे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बतलाना भी गवारा नहीं क्या बल्कि हुक्म था, शौहर छोड़ के जा रहा, हुक्म था कि यहां रहना है। लेकिन हज़रत हाजरा ने पूछा कि हमें इस बेआबोग्याह मैदान में लक्को दक सहरा है, चारों तरफ पहाड़ियां हैं, ना कोई आदम है, ना कोई आदमजाद है, ना कोई चरिंद है, ना कोई परिंद है, ना कोई कुआं है, ना कोई शजर है, ना कोई पत्थर, ना कोई पेड़ है, ना कोई सायेदार दरख्त है, कुछ भी नहीं। यहां आप छोड़ करके एक पहाड़ी की ओर में किसके सहारे जा रहे हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लबों पर महर सुकून थी। आप आगे बढ़ते रहे, फिर आवाज दी, फिर भी खामोशी, फिर आवाज दी, फिर खामोशी। फिर उस नेक और बासफा खातून ने ये जब कहा कि क्या अल्लाह का ये हुक्म है, तो सैयदना इब्राहिम ने मुड़ करके कहा कि हाँ, ये अल्लाह का हुक्म है कि हम तुम्हें यहां छोड़ करके जाएं। अल्लाह अकबर। आप गौर करें, 90 साल की उम्र में नूरे नजर, लफ्ते जिगर, बच्चा पैदा हुआ था, हजार अरमानों के बाद पैदा हुआ था, उसको उसकी मां के हवाले करके इस तरह बेआबोग्याह मैदान में, जाहिर है ये सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दूरदर्श निगाहें देख रही थी कि रब के हुक्म से उन्होंने ख्वाब देखा, अल्लाह ने रात ही को हुक्म दिया था कि सुबह को फटते ही अपने बाल बच्चों को लेकर के तुम्हें फलानी तरफ सफर करना है, रहनुमाई मैं करूंगा। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल पड़े अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से। मैं ये कर रहा था, एक कुर्बानी नहीं की औलाद को ज़बह की, बल्कि ये भी एक अजीम शान कुर्बानी थी कि अब अपने बाल बच्चों को, अपने बीवी को, अपने बच्चे को उस बेआबोग्याह मैदान में अल्लाह के हुक्म से। यहां हमें एक दर्स मिलता है, एक नुक्ता मिलता है। मेरे अजीजों, वो नबी थे, उन्हें ख्वाब में ये चीज नजर आती थी, वही आती थी कि अपनी आल औलाद को यहां पे छोड़ दो। आज तो हम नबी नहीं, ना हम नबीयत, ना हम नबी की उम्मत, हम नबी नहीं है, लेकिन हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, अपने नबी की उम्मत है। हमारे सामने अल्लाह का कुरान है, रब का फरमान है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीते और जागते अहादीस के नमूने हैं। उन्हें वहां हमें हुक्म दिया जा रहा है, वहां भी हमें हुक्म दिया जा रहा है। अल्लाह वहां हमें हुक्म दे रहा है, ऐसा करो, ऐसा ना करो। वहां हमें किसी चीज से रोका जा रहा है, किसी चीज का हुक्म दिया जा रहा है। अगर वहां हमें तिजारत और बिजनेस का हुक्म दिया जा रहा है, तो हमें सूद और क्या कहते हैं, रिश्वतों से मना किया जा रहा है। अगर हमें निकाह और शादी और ब्याह करने का एक तरफ हुक्म दिया जा रहा है, तो हमें जिना
ज़िना जैसे भयानक और खतरनाक जुर्म से रोका जा रहा है। हमें हक व सदाकत का की अगर तालीम दी जा रही है तो हमें यहाँ भी हुक्म दिया जा रहा है कि किस्ब और बहतान से दूर रहो। अगर हमें हक बोलने की तालीम दी जा रही है तो झूठ बोलने से हमें मना किया जा रहा है। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हलाल चीजों को पीने का हुक्म दिया है तो शराब और इसी तरह नशावर चीजों के इस्तेमाल करने से अल्लाह ने हमें मना किया है। अगर जिंदगी के अंदर मेरे अजीजों बहुत सारे हलाल चीजों का अल्लाह ने हुक्म दिया तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें हमारे लिए हराम करार दिया है। अगर किसी जानवर को हमारे लिए हलाल करार दिया तो बहुत सारे वही जानवर हैं उनसे हमें रोका गया है कि इनके गोश्त खाना तुम्हारे लिए हराम है। गरज कहने का मतलब यह है कि ये जिंदगी अम्र और नही के दरमियान गुजर रही है। हमारी और आपकी जिंदगी अम्र और नही के दरमियान गुजर रही है। अगर वाकई हम सहीहुल अकीदा मोमिन हैं, वाकई हम अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपनी कुर्बानियों को पेश करने में हक बजानिब हैं, अगर वाकई हमने अपने जानवरों के गलों पर छुरी चलाते हुए हमने अल्लाह की रजा हमारे नजदीक मकसूद थी, अगर वाकई कुर्बानी करते हुए हमारे दिल में ये इरादा था और ये आज़म और हौसला था कि बारे इलाहा ये एक जानवर है जिसकी जान तुझे मतलूब है और जिसके कुर्बान करने का तूने हुक्म दिया है, ऐ अल्लाह ये एक आध जानवर तेरे दरबार में सिवा कर रहे हैं, लेकिन कल अगर किसी की भी चीज की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो ऐ बारे इलाहा हम उस कुर्बानी के लिए तैयार हैं। अगर हमें अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो हम अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देंगे। ऐ अल्लाह अगर हमें हराम चीजों की कुर्बानी की जरूरत पड़ी तो अल्लाह हम उन हराम चीजों की को तर्क करके छोड़ करके हम ये कुर्बानी कबूल करेंगे। बहुत सारी जिंदगी के अंदर कुर्बानियां हैं। आप ये सोचें कि सिर्फ जानवर की कुर्बानी एक अलामत है, जानवर की कुर्बानी एक रम्ज है, एक शिआर है, एक इशारा है कि हम जिंदगी के अंदर बहुत सारी कुर्बानियां दें, हम अपनी नमाजों हम अपनी नींदों की कुर्बानियां दें, फजर के वक्त बेदार हो, बाजमात मस्जिद के अंदर हाजिर होकर के नमाज अदा करें। गरम बिस्तरे हमें मना कर रहे हैं, नींद का झोंका हमें रोक रहा है और नर्म और मुलायम गद्दे और ब्लैंकेट्स और कंबल हमें रोक रहे हैं। बाहर की सर्दियां ठिठुरती हुई हमें मना कर रही हैं, नींद हमें रोक रहे हैं कि नहीं बहुत सर्दी है, अभी नींद मुकम्मल नहीं हुई, अभी सो जाओ, फजर की अज़ान हो चुकी है, टाइम हो चुका है, नमाज का वक्त हो चुका है। यहाँ आपसे मतलूब यह है कि आप अपने नींद की कुर्बानी दें, अपने ऐशो आराम की कुर्बानी दें, आप अपने गरम बिस्तरों की कुर्बानियां दें। आप ठिठुरते हुए मौसम में उठें और उठ करके अल्लाह की बारगाह में वजू करके अल्लाह की बारगाह में 2 रकात सुन्नत अदा करें और उसके बाद मस्जिद में जाकर के बाजमात नमाज फज्र अदा करें। ये कुर्बानी भी मतलूब है, ये कुर्बानी अल्लाह आपसे मुतालबा कर रहा है। अगर आप इस कुर्बानी के लिए तैयार हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी में ये कुर्बानी करने का आज़म आप रखते हैं और आप जानते हैं और कर सकते हैं तो यकीनन ये बकरे की कुर्बानी भी आपकी काबिल कबूल होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो याद रखो मेरे अजीजों, इन कुर्बानियों से कोई फायदा नहीं। ये एक रस्म है, ये एक रिवाज है, ये एक रियाकारी है, ये एक दिखावा है, ये एक सिर्फ अपनी शोहरत और नमूद है। ये लोगों के सामने गोश्त खाना है, लोगों के सामने लोगों में गोश्त तकसीम करना है। अगर हमने अपनी जिंदगी में हमने झूठ की कुर्बानी न दी, हमने झूठ बोलने से तौबा न किया, और हमने ये कुर्बानी न दी और ये नाअहद किया कि हम जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलेंगे, हमारी जुबान हिलेगी तो हक और सदाकत का पैगाम्बर होगी, हमारी जुबान हरकत में आएगी तो सच बात बोलेगी। अगर ये अहद व पैमान, अगर आप अपनी जुबान को कंट्रोल में न कर सके, अगर आपकी जुबान हक व सदाकत की बोली न बोल सकी, आपकी जुबान से सच्चाइयां न निकली बल्कि झूठ ही निकले, तो याद रखो फिर ऐसी कुर्बानी का कोई फायदा नहीं। अगर आपने हलाल कमाइयों को अख्तियार करके हराम कमाइयों कुर्बानियां दी, जुए से, सट्टे से, रिश्वत से, सूद से अगर आपने तौबा न किया, अगर आपने इन तमाम बुराइयों को न छोड़ा तो फिर ऐसी कुर्बानी का भी कोई फायदा नहीं। कुर्बानी का मतलब यही है कि आप अपनी जिंदगी के एक लम्हों को हक और सदाकत और कुरान और सुन्नत के तराजू में रख करके तौलें और आप ये देखें कि हमारी जिंदगी के अंदर क्या हमारी ये जिंदगी अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशनुदी, अल्लाह के बताए हुए अहकाम के मुताबिक हमारी ये जिंदगी गुजर रही है कि नहीं गुजर रही है। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों और भाइयों, हाँ ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, याद करो उस वक्त को कि जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे के चेहरे को जमीन के ऊपर मट्टी के अंदर लेटाया और छुरी गर्दन पे रखी और रब ने फरमाया फलम्मा अस्लमा, जब वो दोनों मुसलमान हो गए, वो मुसलमान पहले से थे लेकिन हकीकी
ये फरमाई कि मेरे हुक्म के ताबे फरमाबरदार हो गए। मैंने हुक्म दिया था अपने बेटे को कुर्बान करो, अपने अजीज तरीन शय को कुर्बान करो। हाँ, इब्राहिम ने अपने बेटे को जमीन के ऊपर उसके खूबसूरत और हसीन गुलाब जैसे चेहरे को मट्टियों के अंदर डाल दिया। कितनी अजीम कुर्बानी थी एक बूढ़े बाप की 90 बरस की। आज हम सोचे अपने दिल के अंदर हम अपने जेबों की कुर्बानियां नहीं दे सकते, हम और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, जहां कुछ भी खर्च नहीं होता है, ऐशो इशरत जहां है, उसकी कुर्बानी अल्लाह के लिए नहीं दे सकते, तो हम कैसे मुसलमान हैं? हम कैसे मुसलमान हैं? आज हमारे ऊपर कुफ्र दंदनाता हुआ फिर रहा है, हमें जो चाहता है जिस तरफ चाहता है जूते लात तक मार रहा है, हर मुल्क हमारा दुश्मन बन चुका है, हर तरफ मुसलमान और इस्लाम की जिल्लत, मुसलमानों की बेइज्जती, मुसलमानों का कत्ल खून सस्ता, मुसलमानों का खून सस्ता हो चुका है, मुसलमानों का खून अर्जा हो चुका है, चाहे वो सीरिया की सरजमीन हो, चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन हो, चाहे वो हिंदुस्तान में वो बलवाइयों के यूपी के अंदर मुजफ्फरनगर और दीगर देवबंद और सहारनपुर और उसके कुर्ब जवार में रहने वाले मुसलमानों का कत्ल आम हो, चाहे वो बर्मा के मुसलमानों को जिंदा जला देने के हादसात हो, चाहे वो आसाम के अंदर सुलगती हुई मुसलमानों की मस्जिदें और सुलगते हुए मुसलमानों के मदारिस और सुलगते हुए मुसलमानों की लाशें हो, चाहे वो फिलिस्तीन हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो दुनिया का कहीं भी गोशा हो, हर जगह मुसलमानों को जलील और रुस्वा किया जा रहा है, हर जगह मुसलमानों का कत्ल आम हो चुका है और खून बहाया जा रहा है। क्यों? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आज कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा आज वो मुसलमान हम न रहे, वो ईमान हकीकी जो इब्राहिम के सीने के अंदर था, रब्बे रक्काबा की कसम है, वो ईमान हकीकी हमारे अंदर न रहा। हम सनम कदों के पुजारी बन चुके, हमारा सर गैरुल्लाह की चौखटों में झुकने लगा, हमने मर्दों की परस्तिश शुरू करी। इसको मामूली न समझा जाए, इसे मामूली न समझो मुसलमानों, इसे मामूली न समझो। ये मर्दों की परस्तिश, ये हमारी तखल्लुफ और हमारी जिल्लतों रुसवाई की बुनियादी वजह है, बहुत बड़ी वजह है। रब्बे जुल जलाल की तौहीद की चादर को तार तार किया गया और शिर्क के मखमली लिबासों को और अपने बदकिरदारियों के ऊपर डाला गया और शिर्क के दंदनाता शिर्क दंदनाता फिरे। मेरे अजीजों, ये अल्लाह को कभी बर्दाश्त नहीं होगा, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को कभी बर्दाश्त नहीं होगा। मुसलमान अल्लाह उनकी हिफाजत की, वल्लाह अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युदाफिउ अनिल लज़ीना आमनू, अल्लाह अपने मोमिन बंदों का दिफा फरमाता है। यानी अगर कोई बातिल कुव्वत, अगर कोई बातिल ताकत उन्हें ज़ेर करने के लिए, पसपा करने के लिए, जलील और रुसवा करने के लिए आगे बढ़ती हैं, तो रब की फौजें उससे पहले उन्हें पसपा और जलील कर देती हैं। आज तो हर एक हमारा दुश्मन बन चुका है, ये जमीन भी दुश्मन, ये आसमां भी दुश्मन, ये हवाएं भी दुश्मन, ये फदाएं भी दुश्मन, ये कंकर और पत्थर भी दुश्मन। जब चला करते थे, हाँ, ये हैवानात और ये जानवर जो हमारे लिए रहनुमाई का सबब थे, जो चला करते थे हम, तो हमें रास्ते बताया करते थे। हम समंदरों में जाते थे तो समंदर हमारे लिए अपने सीने को चाक करके सीमेंटेड की रोड बना दिया करता था। हम दरख्तों से गुजरते थे तो हमें सलाम की आवाज आती थी। हम किसी जंगल से गुजरते थे और आवाज देते थे कि गुलामाने मोहम्मद आज इस जंगल में बसेरा करने वाले हैं, तो खूंखार जानवर अपने बच्चों को मुंह के अंदर दबाए हुए वो कते आराजी खाली कर दिया करते थे। गरज कहने का मतलब यह है, हम जिधर जाते थे हवाएं उधर का रुख करती थी, लेकिन आज सब बैर है, सारी दुश्मनियां हैं। वजह क्या है? हम सब कुछ रसूमात अदा करते हैं, उसके बावजूद भी मेरे अजीजों इसके अंदर रूह इब्राहिमी नहीं है, इसके अंदर इब्राहिम की रूह नहीं है। यह कुर्बानी हमसे मुतालबा करती है, हमें बहुत सारी कुर्बानियों से गुजरना पड़ेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी तरह से कायनात के रहनुमा न बनाए गए, इस तरह आसानी के साथ कायनात के रहनुमा न बना गए। खुद इब्राहिम ने जब अपनी जान को आग के हवाले किया, अंगारों में डाला, मिनजनीक के अंदर बांधे गए, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मिनजनीक के अंदर। और उस मौके पर भी रब्बे जुल जलाल, वाह तेरी शान है अज़मत, क्या बात है तेरे अज़मतों, किबरियाई की कि अपने बंदे का आखिरी लम्हे तक एग्जाम लेती है, इम्तिहान लेती है, इम्तिहान लेती है। सैयदना जिब्रील को हुक्म होता है, जाओ जरा इब्राहिम के ईमान को टटोलो। इस वक्त आसमानों से छूते हुए अंगारों के ये शोले कि अगर परिंदे भी बाजू से गुजरे तो उनके पर झुलस करके उसके जो है अंगारों के हवाले हो जाएं। जिन्होंने आग जलाई भी वो जा जाके पत्थरों के
के बीच में कहीं दुबक के बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी जलाई हुई आग के शोले और उसकी आंच और उसकी तपिश उन तक पहुंच रही थी। वहां सिर्फ मिंजनीक पर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रस्सियों से जकड़ करके बांध दिया गया था। अल्लाह उस मौके पर भी अपने इब्राहिम का ईमान टटोल रहा है। जिब्रील जाओ जरा इब्राहिम का इम्तिहान लो, उनसे कुछ खो। हज़रत सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, कहते हैं कि हमें इन शदीदुल क़ुवा, मुझे अल्लाह ने बहुत ताकतवर बनाया है, मैं बड़ी ताकत का मालिक हूं। आप अगर इजाजत दें, पर का हल्का सा झोंका देंगे, ये आग जो है ठंडी हो जाएगी। अगर आप इजाजत दें, आपको यहां से हम एक ऐसी बस्ती में उठा करके लेके चले जाएं कि इन्हें इनकी आंखों में धूल झोंक जाएगी, इन्हें पता भी नहीं चलेगा, और आपको मिंजनी से उठाकर बसलामत हम कहीं और लेके चले जाएंगे, आपकी जान बच जाएगी। अल्लाह अकबर। लेकिन सैयदना इब्राहिम इतने ईमान के कवि और इतने मुतवक्किल अल्लाह, कहने लगे जिस रब ने हमें यहाँ पर लाया है और जिस रब के ऊपर हमने भरोसा किया है, जिब्रील आज तुम्हारे ताउन या तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, मेरे लिए, मेरी हिफाजत के लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, मेरी हिफाजत के लिए मेरा अल्लाह ही काफी है। अल्लाह अकबर। दुनिया ने माथे की निगाहों से देखा, मिंजनीक चलाई गई, हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अंगार के हवाले किए गए। दुनिया ने अपने माथों की निगाहों से देखा कि जल के इब्राहिम खाकस्तर हो चुके होंगे, हाँ उनके चमड़े, उनके गोश्त और उनकी हड्डियां जल कर के राख हो चुकी होंगी। लेकिन थोड़ा ही लम्हा गुजरा था कि सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने दामनों को झाड़ते हुए उसी अंगार के खार से बाहर निकल रहे हैं, सही सलामत निकल रहे हैं। क्यों? रब ने अगर उस आग को जलने की कुव्वत अदा फरमाई है, तो उस आग से सल्ब की कुव्वत भी, उसकी तपिश और उसकी जलन की ताकत को भी सल्ब करने की ताकत रब्बे जुल जलाल को है। उसकी महकूम है वो आग, उस ज़ाते किबरिया की महकूम है वो आग। उस रब ने आसमान से आवाज दी थी, या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ मेरी आग, ऐ आग याद रख, मेरे दरमियान मेरा एक महबूब खलील आ रहा है, इब्राहिम आ रहा है। कूनी, हो जा तू, बरदन, ठंडी हो जा, ऐसी ठंडी नहीं, सलामन बरदन सलामन, बरदन सलामन, ऐसी भी ठंडक ना हो जा कि मेरे इब्राहिम को छींक आ जाए, मेरे इब्राहिम को नजले हो जाए, मेरे इब्राहिम को की तबीयत खराब हो जाए। ना 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 ना, सर्द भी हो तो सलामती के साथ सर्द हो जा। बरदम व सलामन अला इब्राहिम, इब्राहिम के लिए सर्द ऐसी हो जा कि उसके और सलामती के साथ सर्द हो जा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, ये रब हिफाजत फरमाता है। तुम सबको कुछ न समझो, ये सब दिल का जुनूद रब्बिक ला यअलमु इल्ला हु, कायनात का जर्रा जर्रा सब अल्लाह के लश्कर हैं, सब अल्लाह की फौज है। तुम अल्लाह वाले बन जाओ, तुम अल्लाह के नेक बंदे बन जाओ। रब्बे जुल जलाल की कसम है, ये जर्रे तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, ये दरख्त और ये पेड़ तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, आसमानों से बरखा तुम्हारी मदद के लिए उतरेगी। फरिश्ते आज भी मुंतजिर हैं, हाँ अबाबील आज भी मुंतजिर हैं, लेकिन आज तुम्हारी मस्जिदें ढाई जा रही हैं, तुम्हारी मस्जिदें बेहुरमती हो रही है, तुम्हारे खूनों की बेहुरमती हो। वजह क्या है? क्या आज ये कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ रहा? वजह यह है कि हम अल्लाह की मदद नहीं कर रहे, बल्कि हम अपने शिकम और अपने पेट और अपने कुर्सी और अपने वोट और अपनी सियासत और अपने मुल्क और अपने जमीन और मट्टी की फिक्र किए हुए बैठे हुए हैं। इसलिए ये तमाम सब चीजें अल्लाह के हुक्म की मुंतजिर हैं, और जब हम अल्लाह के वाले बनेंगे तब अल्लाह का हुक्म होगा, तब ये चीजें हरकत में आएंगी। ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, कुर्बानी सिर्फ बकरे की कुर्बानी कर लेना काफी नहीं है। कुर्बानी तो अब यहां से आपकी जिंदगी का की कुर्बानी, लम्हे लम्हे की कुर्बानी तलब कर रही है। हाँ, आपसे सूद छोड़ने की कुर्बानी का मुतालबा हो रहा है, झूठ तर्क करने का मुतालबा हो रहा है, आपसे गीबत और चुगली छोड़ने का मुतालबा हो रहा है, आपसे शिर्क और बिदअत की कुर्बानी करने का, कुर्बानी देने का मुतालबा हो रहा है। आपका रोंगटा आपके जिस्म के हिस्से और आपके कदम कुर्बानी से कि आप सच्चे पक्के मोमिन और मुसलमान बने, इस बात का मुतालबा किया जा रहा है। यह है कुर्बानी का मकसूद और यह है कुर्बानी की रूह, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। मेरे अजीजों, अल्लाह को उसका खून नहीं पहुंचता, कुर्बानी का गोश्त नहीं पहुंचता। जो चीज अल्लाह तक पहुंचती है या अल्लाह को जो चीज प्यारी है, जो चीज मतलूब है, वो आपके दिल का तक़वा है, आपके दिल का तक़वा है, परहेजगारी है। मतलब तमाम हराम चीजों की कुर्बानियां दें, हलाल चीजों को आप अपनी जिंदगी के अंदर नाफिज करें। आज से यह अहद करें, आज से ये पैमान करें, आज से ये वादा करें कि इंशाअल्लाह जिंदगी का एक एक कदम रब्बे जुल जलाल और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ताबेदारी में इंशाअल्लाह गुजरेगा। इंशाअल्लाह ताला हुकूकुल इबाद हो,
حقوق اللہ ہوں، حقوق الجیران ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، بھائیوں کے حقوق ہوں، بہنوں کے حقوق ہوں، آل اولاد کے حقوق ہوں، بیوی بچوں کے حقوق ہوں، اپنے دوست احباب کے حقوق ہوں، وطن کے حقوق ہوں، ملک کے حقوق ہوں، اسی طرح اسلامی حکمرانوں کے حقوق ہوں، عمرا کے حقوق ہوں، جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے حقوق ہوں، ہم اسی انداز سے پورا کریں گے جس انداز سے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں مکمل کرنے کا حکم دیا ہے. ہماری زندگی مکمل طریقے سے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کا نمونہ ہوگی، تب ہماری قربانی یہ اصل میں قربانی مانی جائے گی اور یقیناً یہ تسلیم کیا جائے گا کہ یہ اچھی اور پکی اور سچی قربانی تھی. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی تمام قسم کی جو بھی اللہ کو مطلوب قربانیاں ہیں اللہ اس کے دربار میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہر برائیوں سے ہم تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. سنت ابراہیمی خلیل اللہ کی سنت کو زندہ کرنے، توکل اور عزم اور حوصلے اور اسی طرح عظمت اور بلندیوں کو حاصل کرنے کے لیے سنت ابراہیمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى اعلى وعلى واعظم جل وعظم واعظم وهم اكبر والله يعلم ما تصنعون.